Good morning, students. Today we will start chapter 9, that is down memory lane. Now, student, its title mean down memory lane means अतीत की याद. ओके, जैसे हमने कोई फोटो ली हो, वीडियो बनाया हो, मेमोरी में याद करने के लिए, तो इट इज ए डाउन मेमोरी लैन. ओके स्टूडेंट. नाउ like I will express this chapter. Monuments serve as a reminder of our past. They help us understand the heritage and history of our nation. It is our duty to protect them. Okay, like the monuments, we click the photos, make a video record, paintings, photo album, so on for down memory lane. So this time we are studying about the down memory lane topic monument. Now 9.1 Pap is here. Payal had a wonderful time with her family at Marina Beach in Chennai last Sunday. She has kept the photographs of the visit in an album. Students, I am on page number 57. Here is a PAP 9.1. Now in this PAP, Payal had a wonderful time. मरीना बीच पे पायल अपनी फैमिली के साथ में घूमने गई है चेन्नई में लास्ट संडे. शी हैज़ केप्ट द फोटोग्राफ्स. इसके उसने एक फोटोग्राफ्स बहुत सारी केप्ट की हैं, ली हैं फोटोग्राफ्स और एक एल्बम बनाया है. विजिट इन एन एल्बम like this. Okay students, now most of us have special moments in our lives. हमारे सबके जीवन में बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं. सम ऑफ अस टेक फोटोग्राफ्स और वीडियोस टू लुक बैक एट दिस मोमेंट्स. इन पलों को याद करने के लिए हम कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं. वाइल अदर्स रिकॉर्ड देयर मेमोरीज इन अ डायरी. लेकिन कुछ लोग वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरी भी लिखते हैं. So student, first describe a special moment in your life. Share it with your partner. कोई भी ऐसे स्पेशल मोमेंट हो आपकी ज़िंदगी का, आप डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप ज़रूर बताइएगा. Then second question, have you stored the memory of this moment in any form? If yes, how? क्या आप इन चीज़ों को, किसी भी मोमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करते हैं? अगर हाँ, इफ यस तो हाउ, कैसे? देन थर्ड, इफ नो, हाउ वुड यू लाइक टू सेव एंड शेयर दिस मेमोरी विद अदर्स? अगर नहीं करते आप सेव अपनी मेमोरी को, मोमेंट को सेव नहीं करते हैं जो आप इंजॉय करते हैं, तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे? सो स्टूडेंट, टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेस इन क्लास, but we all know we share some wonderful memories. We save it by photo album, video record, postcard, paintings and so on. So students, in this chapter we studied about down memory lane. Okay, first is monument. So student, monument is a statue, is memorable. It means smarak. Now move on next page. What is monuments? Page number 58 students. Monument is a structure or a building that stand in a memory of a person or an event. Monument क्या है? स्मारक क्या है? कि स्ट्रक्चर है, एक स्मारक है, एक बिल्डिंग है. That stand in a memory of a person. किसी घटना, किसी व्यक्ति को याद करने के लिए बनाया जाता है. It is usually preserved, taken care of as public property so that future generation can learn about the past. It is usually preserved. इसको प्रिजर्व किया जाता है, इसकी देख रेख की जाती है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए है, ताकि आने वाले जनरेशन को ये पता लगे कि ये जिनकी मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन थे, किसने बनवाया था, किसका था. सो मैनी क्वेश्चंस
we have in our mind, we ask them regarding monument. So students, what is a monument? A monument is a structure or a building that stand in a memory of a person or an event. Okay, many years ago, emperors built monuments in memory of special moments in their life. Some examples of monuments are forts, palaces, places of worship and tombs or forefathers. बहुत साल पहले हमारे देश में राजा थे, बिल्ड मॉन्यूमेंट्स इन मेमोरी, उन्होंने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए, कुछ स्मारक बनाए ताकि उनको याद किया जा सके, स्पेशल मोमेंट्स को याद किया जा सके। उनमें से कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स आर फोर्ट्स, जैसे किले बनवाए, महल बनवाए, बहुत सारे पूजा के स्थल बनवाए, टॉम्ब बनवाए हैं अपने, जैसे याद रखने के लिए कि कहाँ पे उनको दफनाया गया था, उनकी याद में बनवाए गए, उन्हें टॉम कहा जाता है बेटा। सो स्टूडेंट्स, memory of a special moments. So emperors build monuments. Okay, here is a Shabana has been visiting different monuments across India. She has made a scrapbook using the pictures she has taken at these places. She has also included some information about the monuments. Let's take a look. Shabana has been visiting. Shabana विजिटिंग, घूमने जा रही है मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक है, वहाँ पे घूमने जा रही है शबाना। शी हैज़ मेड अ स्क्रैप बुक, वो स्क्रैप बुक ले गई यूजिंग द पिक्चर्स बनाने के लिए। शी हैज़ टेकन एट दिस प्लेसेस, शी हैज़ आल्सो इंक्लूडेड सम इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा वो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहती है मॉन्यूमेंट्स के बारे में। लेट्स टेक अ लुक। दिस इज अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हियर इज दिल्ली, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha and Tamil Nadu. Okay, so student, we are discussing about down memory lane. Okay, move on next phase. Here is a monument where Shobana has been visiting. Okay, now first monument is Sanchi Stupa. It is a stupa. Location Madhya Pradesh, city Sanchi, built in 3rd century BCE, before Crystal era. Known for a stupa is a dome-shaped structure. Dome-shaped structure, look, it is a dome shape. There are many stupas that represent the life of the Buddha. ये स्तूपा डॉम शेप स्ट्रक्चर है इसका, इसमें प्रेजेंट करता है ये बुद्धा की लाइफ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर प्रिजर्व है। देन द स्तूपा वाज बिल्ड एज अ सिंबल ऑफ पीस. आई वंडर हाउ मेनी टूरिस्ट नो दिस. आई वुड नॉट हैव known much about the life of the Buddha without visiting the सांची स्तूपा. सांची स्तूपा जो है वो सिंबल है, किसका सिंबल है? वो पहचान है शांति की, पीस की. आई वंडर हाउ मेनी टूरिस्ट, मैं ये जान के बहुत वंडर है मुझे कि कितने लोग, कितने टूरिस्ट जो हैं, जो घूमने आते हैं, वो इसको जानते हैं. आई वुड नॉट हैव नोन मच अबाउट द लाइफ ऑफ द बुद्धा. मैं यहाँ पे आने के पहले बुद्धा की लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, बुद्धा विदाउट विजिटिंग द सांची स्तूपा. लेकिन जैसे ही मैं सांची स्तूपा में आई, मैंने विजिट किया सांची स्तूपा, मुझे बुद्धा के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली. Who said this? Shabana, because Shabana has been visiting different monuments across India. The first monument is Sanchi Stupa, location Madhya Pradesh, city Sanchi, building 3rd century BCE, before Common Era. BCE full form is before Common Era. Okay student, I am here. History check. King Ashoka is said to have waged many wars till he realized the importance of peace. He became a follower of the Buddha. He is known to have built the stupa at Sanchi in his honor. History check. What is the history of the Sanchi stupa? King Ashoka is said to have waged. King Ashoka ने बहुत सारे युद्ध किए,
ओके, वेस्ड यानी इन्फोर्स होता है, अप्लाई होता है, सो मैनी वर्ड्स आर देयर रिप्रेजेंट द वेस्ड, मैनी वॉर टिल ही रियलाइज, बहुत सारे युद्ध किए अशोका ने, लेकिन क्योंकि वो ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, जब तक कि उसे मालूम नहीं था कि पीस किसको कहते हैं, शांति क्या होता है, तब तक उसने बहुत सारे युद्ध किए। हु? किंग अशोका। ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ द बुद्धा, लेकिन जैसे ही उसको इम्पोर्टेंस पता चली पीस की, उसने रियलाइज किया कि शांति क्या होती है, पीस क्या होती है, वो फॉलोवर बना बुद्धा का, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला एक फॉलोवर बन गया महात्मा बुद्ध का। ही इज नोन टू हैव बिल्ट द स्तूपा एट सांची इन हिज ऑनर, और इसी के लिए उन्होंने सांची स्तूपा बनाया, उनको सम्मान देने के लिए, बुद्ध की कुछ शिक्षाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए किंग अशोका ने सांची स्तूप बनाया। सो स्टूडेंट, किंग अशोका जो थे उन्हें युद्ध बहुत पसंद था, लेकिन एक बार युद्ध में उन्हें बहुत खराब लगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए, बहुत सारी रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वहाँ से बौद्ध धर्म को मानने वाले उपगुप्त थे, वहाँ से निकल रहे थे, वो राजा से मिलने आए और उनको ले जाके दिखाया कि देखो अशोक आपने क्या किया है, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई इस चीज़ से, और उसके बाद में उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया, बिकॉज ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, एंड देन आफ्टर दैट ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ द बुद्धा, बुद्धा को मानने वाले वो बने, एंड ही इज नोन टू हैव बिल्ट द स्तूपा एट सांची इन हिज ऑनर, और उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने सांची स्तूपा बनवाया। Common era CE start from the first century which marked the birth of Jesus Christ. फर्स्ट सेंचुरी CE कॉमन era. ओके, ये कौन सा टाइम है विच मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये वो वाला टाइम है, वो वाला ईरा है, 100 ईयर्स इज अ कॉमन ईरा। तो ये ईरा वो है जब जीसस क्राइस्ट हुए थे, उसे कॉमन ईरा बोला जाता है फर्स्ट सेंचुरी का। द टाइम बिफोर दैट इज रेफर्ड टू एज बिफोर कॉमन ईरा और BC, उनके बाद का टाइम जो था, लेकिन उनके जो टाइम बिफोर, उस वाले टाइम को BC बोला जाता है, यानी बिफोर कॉमन ईरा। ओके, उनके जो पहले का जो टाइम था, उनके बाद का जो टाइम जब उनका जन्म हुआ था, उसे CE बोला जाता है, यानी फर्स्ट सेंचुरी। उसके पहले का जो टाइम है उसे BCE कहा जाता है, यानी बिफोर कॉमन ईरा। नाउ स्टूडेंट, you hope you understand, I hope you understand, 59 page is a monument, Sanchi Stupa, or we all know, all students you know, monument is a structure or a building that stands in the memory of a person or an event. Okay then, move on next page. Here, monument show temple, location Tamil Nadu, city Mahamalappuram, near Chennai, built in 8th century CE, common era. Known for, किस चीज़ के लिए शोर टेम्पल जाना जाता है? The shore temple is built from granite. The used temple lies in the shore of the Bay of Bengal and is 60 feet tall. शोर टेम्पल ग्रेनाइट स्टोन का बना हुआ है, बहुत बड़ा यूज टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल है। शोर टेम्पल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के किनारे पर बसा हुआ है और ये 60 फीट टॉल है शोर टेम्पल। ओके स्टूडेंट्स, सो मॉन्यूमेंट शोर टेम्पल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के किनारे पर बसा हुआ है, उसके तट पर बसा हुआ है, इसलिए इसे शोर कहा जाता है। ये बहुत बड़ा टेम्पल है, ग्रेनाइट स्टोन का बना हुआ है, 60 फीट टॉल है ये। इसकी लोकेशन तमिलनाडु है, सिटी है महाबलीपुरम कहते हैं इसको, और इंग्लिश में मामल्लपुरम कहा जाता है, नियर चेन्नई। नाउ हिस्ट्री चेक, records say that the temple was constructed during the rule of the पल्लव किंग। पल्लव किंग के शासनकाल में इसको बनाया गया था, इस टेम्पल को। नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, द शोर टेम्पल
tells us about the efforts taken long ago in the South India while building temples. पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था शो टेम्पल को, और इस टेम्पल में अबाउट द एफर्ट्स टेकन लॉन्ग अगो इन साउथ इंडिया वाइल बिल्डिंग टेम्पल्स, कि इस बिल्डिंग को बनवाने में बहुत टाइम लगा था, और साउथ इंडिया के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मूर्तियाँ, स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं. This is one of the oldest temple in South India. It is an amazing experience to look at the sea from the temple. Now one it is called the Shore Temple. I am here students. This is one of the oldest temple. पुराने मंदिरों में से एक मंदिर शो टेम्पल भी है, साउथ इंडिया में भी है. इसी नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनवाया था, पालव किंग्स थे जो, और ये बहुत बड़ा मंदिर है साउथ इंडिया का. ओके स्टूडेंट्स, और सबसे जो वंडर की बात है, इट इज शो टेम्पल. इसे शो टेम्पल कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन नेक्स्ट पेज. मॉन्यूमेंट. कोणार्क सन टेम्पल, लोकेशन उड़ीसा, सिटी कोणार्क, बिल्ट इन 13th century CE, कॉमन इरा CE. ओके, मॉन्यूमेंट्स. कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, कोणार्क सिटी है, मंदिर है सन का कोणार्क में. नोन फॉर द एंटायर टेम्पल इज मेड इन द फॉर्म ऑफ चैरिट. ये टेम्पल जो है वो चैरिट से बना हुआ है, जिसमें रथ लगे हुए हैं, ड्रॉन बाय 7 हॉर्स, जिसे 7 हॉर्स खींच रहे हैं, और 12 पेयर ऑफ डेकोरेटेड व्हील, और 12 पेयर हैं व्हील्स के जो डेकोरेटेड हैं विद अ श्राइन फॉर द सन गॉड सूर्य, और जिस पे शाइन कर रहे हैं सन गॉड भगवान. सो स्टूडेंट्स, अगेन द एंटायर टेम्पल, जो टेम्पल का एंट्रेंस है, इज अ मेड इन द फॉर्म ऑफ चैरियट, जो रथ का बना हुआ है, ड्रॉन बाय 7 हॉर्स, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं. 7 हॉर्स हैं जो ड्रॉन कर रहे हैं ऑन 12 पेयर ऑफ डेकोरेट, और उसमें 12 पेयर्स हैं डेकोरेट व्हील के, जहाँ पर सन साइन कर रहा है. द स्पोक्स ऑफ द chariot's wheel serve as a sundial and their shadows can tell you the exact time of the day. The spokes, इसमें जो व्हील्स में जो स्पोक्स लगी हैं, जो कड़ियाँ लगी हुई हैं, वो सनडायल हैं. सनडायल मीन्स धूप घड़ी, यानी वो अपने को टाइम बताती है. एंड देयर शेडो कैन टेल यू द एग्जैक्ट टाइम, और जैसे सन की उसमें शेडो पड़ती है वो आपको एग्जैक्ट टाइम बताती है कि क्या टाइम है. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी वंडर. Now, the Sun Temple with its sundial reminds me of the modern day clock tower. Sun Temple में जो sundial है, जो धूप घड़ी है, reminds me, मुझे याद दिलाती है of the modern day clock tower. Modern day की clock tower की वो मुझे याद दिलाती है. लेकिन students, it is very wonderful thing for us. A sundial is a clock that uses the position of the sun to show time. सन डायल क्या है? एक क्लॉक है जो सन की पोजीशन पर टाइम बताती है. अ रोड इज फिक्स ऑन अ फ्लैट प्लेट विथ मार्किंग द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द रोड हेल्प्स मेजर टाइम. द रोड इज फिक्स, उसमें रोड फिक्स है, फ्लैट प्लेट पे मार्किंग की गई है. द लेंथ ऑफ द शेडो, जैसे ही शेडो पड़ती है सन की, उसमें राइट टाइम आ जाता है. सो स्टूडेंट्स, टू स्पेलिंग्स आर देयर. चैरियट रथ होता है बेटा, एंड सनडायल धूप घड़ी. हिस्ट्री चेक. द टेम्पल इज नोन टू हैव बीन built by King Narasimha. There is also a story that says that the temple was built by the son of Lord Krishna. The Konark temple shows that the sundials were used in early days to tell time. History check. जो टेम्पल है सन टेम्पल, नोन टू हैव बीन बिल्ट बाय द किंग नरसिम्हा देवा ने बनवाया था. देयर इज आल्सो स्टोरी, इसके पीछे और भी स्टोरी है, दैट से दैट द टेम्पल वाज बिल्ट बाय द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. स्टोरी और भी है इसमें कि लॉर्ड कृष्णा जो थे उनके बेटे ने इसको बनवाया था, कोणार्क सन टेम्पल को. द कोणार्क टेम्पल शो दैट द सन डायल, कोणार्क टेम्पल में
जो sundial है, जो धूप घड़ी है, वर यूज इन अर्ली डेज टू टेल टाइम। अर्ली डेज में इसको समय देखने के काम में लिया जाता था। आज एवरीबडी हैव द क्लॉक, everybody have it, wristwatch, okay, but that time in every early days sundial is used as a clock, okay. So student, hope you all understand about the